હેલો મેમ તમે રિક્વેસ્ટ મોકલો ને હા એટલે ઝૂમ મેં ઓન કરી દીધું છે ઓકે Teacher. અને બંધ કરી દો. હું ફોન કટ કરું છું આનું પેલું એ થાય છે હા હા yes ma'am are you able to do with this screen share so fine હા ટ્રાય કરું છું સ્ક્રીન શેર તમારામાં એક્ટિવ નથી દેખાતું હજુ. સ્ક્રીન શેર હજુ મારામાં એક્ટિવ દેખાતો નથી હા okay હું તમને હોસ્ટ બનાવું છું ઓકે ઓકે તો તમે કરી શકશો મે બી હવે થયું સર એક જ મિનિટ. Still trying. સ્ક્રીન શેર નું ઓપ્શન આવી ગયું. આવી ગયો ને સર હવે Yeah. તમે હોસ્ટ બન્યા છો ને તો તમારામાં બધા પાર્ટિસિપન્ટ ને રિક્વેસ્ટ આવશે તો એમને એડમિટ કરવા પડશે તમારે ઓકે હા ને ઓકે ઓકે. જી જી Are you able to see the presentation? yeah the presentation Uh, screen is on okay, fine. yes sir એડમિટ કરવા માંડીએ એને બધાને. yes sir start admitting नहीं मैंने hello yes ma'am સંભળાય છે ને ક્લિયરલી yes ma'am
મેમ પાર્ટિસિપન્ટ્સ થાય તો પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો મને જણાવશો કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ થાય? 30. Okay. તમે કેટલા પરથી સ્ટાર્ટ કરવાનું વિચારો છો? 32 થઈ ગયા છે અરાઉન્ડ. આપણે 2 o'clock ના સ્ટાર્ટ કરી દેશું મેડમ. 34. Sapna and Jill, please inform your classmates to join. Yes, ma'am. Hello. Good afternoon. Yes. Yes, yes. Just WhatsApp me on this number na. I will forward you the link. Okay. Sorry? Zoom. It's on Zoom. Yeah. Yeah. Ma'am, shall we start? Okay. So, very good afternoon on one and all. I'm Dr. Priyanka from Nutan College of Physiotherapy, and we are organizing this webinar. So, at the outset, I would like to request Jill Shah to introduce our today's guest speaker. Over to you, Jill. Thank you, ma'am. A very good afternoon to one and all. Myself, Jeel Shah, and I am a student of Nutan College of Physiotherapy from 4th year BPT. And it's my honor to introduce our today's guest speaker, who is a renowned physiotherapist, fitness expert, and a pelvic floor rehab specialist. She is a fellow of IAFT and CanFit Pro certified trainer from Canada. Having worked for over 11 years, she is associated as a consultant physiotherapist with hospitals like SIDS, the Rupal Hospital, Nirmal Hospital in Surat. She specializes in workplace ergonomics and pelvic floor rehabilitation. With this brief introduction, I would like to introduce Dr. Bijal Gandhi to the audience. Thank you and best of luck to all of you. Over to you, ma'am. You can start with your class. Okay. Hi, good afternoon, everyone. Okay. My name is Dr. Bijal Gandhi. आपको जैसे बोला है यूजुअली हम पहले क्या थे ना पहले हम हमारा इवोल्यूशन हुआ આપણું ઇવોલ્યુશન થયું
લાઈક પહેલા મંકીઝ થી આપણે કરીને આવ્યા, આપણે પહેલા 4 પગ પર હતા, તો ત્યારે આપણા પેલ્વિક ફ્લોર મસલ્સ જે હતા ને તે કમ્પેરેટિવલી બહુ સ્ટ્રોંગ હતા, ઘણા સ્ટ્રોંગ હતા, બીકોઝ એબ્ડોમિનલ મસલ્સ જે હતા ને તે ગ્રેવિટીની ઇફેક્ટમાં રહેતા હતા. હવે અત્યારે કેવું ધીરે ધીરે ઇવોલ્યુશન થયું અને આપણે 2 પગ પર ચાલતા થયા, લાઈક હમ 2 पैर पे चलते हुए. તો હવે કેવું થાય છે ને, પેલ્વિક ફ્લોર મસલની ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી ગ્રેવિટીનું પુલ રહેતું હોય છે, કન્ટિન્યુઅસલી એની પર એ સ્ટ્રેસ રહેતું હોય છે. એને કારણે લઈને આજે ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ જોવા મળે છે, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળે છે. એન્ડ વી કેન સે કે ફિમેલ આર સાયલેન્ટ સફરર, નોટ ઓનલી ફિમેલ, મેલ પર્સન ઇવન, કે અત્યારે હજુ એ બોક્સની બહાર લોકો આવતા જ નથી, તમારી સાથે શેર કરતા જ નથી, તમારે કઢાવવું પડે છે ઘણીવાર કે મને આ Ma'am, there's ઇશ્યુ a છે. request from one candidate. They want you to speak in English. ઓકે. As we evolve, we were like we descend from monkeys, our ancestor, right? At that time the pelvic floor muscle was quite relaxed. Now the pelvic floor muscles are continuously under stress as we are walking on our 2 legs, not on 4 legs, right? So continuous pull, continuous stress on pelvic floor muscle leads to so many conditions, so many problems. And the problem is we are not openly discussing all these things on the floor, in the clinic or anywhere else. As our mother, our sister told us like yeah, let it happen, ये होता है, ऐसे होता है, डोंट वरी, आफ्टर मैरिज ये होता है, रिजॉल्व हो जाता है, लाइक पीरियड्स इश्यूज होते हैं, किसी को सेक्सुअल इश्यूज होते हैं, किसी को वेजिनिस्मस होते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, लाइक यूरिनरी इनकंटिनेंस होते हैं आफ्टर डिलीवरी, ये these all issues are so pretty much common, so doesn't matter, they don't feel like it should be like मुझे डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर के साथ और एल्स, ठीक है? तो वी आर हंटिंग दोज पीपल और हम उनको गाइडलाइन देते हैं और काफ़ी सारे इश्यूज हम सॉर्ट आउट करते हैं बाय डिस्कसिंग, और काफ़ी सारे इश्यूज हम उनको काम डाउन करके सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उनको ले जाते हैं हम अपने क्लिनिक पर एंड ट्राई करते हैं कि वो हमें अलाउ करे कि हम पेल्विक फ्लोर की ट्रेनिंग कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि उनका अग्री होना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये प्राइवेट पार्ट होता है, वी कांट टच विदाउट देयर परमिशन, right? I'm starting with my presentation, like pelvic, what is pelvic floor muscle? See, मैं एकदम superficially जा रही हूँ because I think third और fourth year के students के लिए this is much more important. मैं एकदम superficially अभी guideline दे रही हूँ. See the diagram. जैसे ऊपर का एक triangle है, नीचे एक triangle है, that is urogenital triangle and anorectal triangle. वो बार बार मेरे words में आएगा. And what is pelvic floor rehabilitation? Pelvic floor rehabilitation एक kind of approach है जो pelvic floor muscle के लिए है, उन्हें हम ट्रेन करते हैं. if they are tight तो उनको हम रिलैक्स होना सिखाते हैं, if they are loose तो उनको हम प्रॉपर टोन मेंटेन करना सिखाते हैं, ठीक है? तो we are strengthen and function उसका स्मूथ हो, उस पे फोकस करते हैं. सो दैट इज रिहेबिलिटेशन. वो भूल जाते हैं, कई बार स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, कई बार पैथोलॉजी इंड्यूस्ड होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल होता है, राइट. और ये पेल्विक फ्लोर मसल यूजुअली कहाँ से कहाँ होते हैं? तो वो होता है अपने टेल बोन से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक पूरा कवर किया होता है, इसीलिए हम उसको फ्लोर बोलते हैं. जैसे हमारा डायाफ्राम का जैसा फ्लोर होता है वैसे इसका भी फ्लोर होता है, राइट. अभी पेल्विक फ्लोर मसल का जैसे हम पोस्चर कभी कभी देखते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट को पहले से ही मतलब पोस्चर ऑब्जर्व करना सिखाया जाता है, लाइक अवर आईज शुड बी लाइक सीटी स्कैन और एमआरआई और एक्सरे, कि हम पोस्चर देख के पता चलना चाहिए कि उसको क्या इश्यूज होने चाहिए. तो पोस्चर इज रिलेटेड टू योर मेंटल स्टेटस आल्सो एंड योर पेल्विक, वो इतना इन्फ्लुएंस करता है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी, राइट. Importance of pelvic floor rehabilitation, right?
अभी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो हम पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, अर्ज यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, वजाइनल लैक्सिटी होती है, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं, पेल्विक पेन होता है किसी को, मसल स्पाज्म इन फीमेल बहुत बहुत कॉमनली देखने को मिलता है आफ्टर मैरिज और इन कॉलेज लाइफ. दे फील दिस थिंग्स व्हेन दे कम अक्रॉस फिजिकली, मतलब फिजिकल रिलेशन में जब आते हैं तब फर्स्ट टाइम उनको ये पता चलता है कि आई हैव समथिंग पेनफुल ओवर देम. ठीक है. फिर मेल पर्सन के अंदर होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इजेक्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है, वॉइडिंग ड्रिबलिंग होता है उनके अंदर, प्रोस्टाइटिस होती है, पेल्विक पेन होता है. ये सारी कंडीशंस भी ट्रीट की जाती है. तो उनकी कंसेंट लेना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है. एंड नेक्स्ट इज पेल्विक फ्लोर मसल्स कौन से हैं? जैसे हम यूजुअली हमारी एनाटॉमी में और इसमें पढ़ते हैं ना, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स इतना डीप हमें बताया नहीं जाता या हमारे पास वो डायग्राम नहीं होता कि हम समझ पाए कि व्हाट इज कैसा होता है एक्चुअली स्ट्रक्चर. वो 3D डायमेंशन में कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, बट नाउ हमारे पास वो अवेलेबल है. और काफी सारे मतलब उस पर बुक्स भी आ चुकी है और काफी सारे प्रोफेसर भी है जो हमें उसमें गाइड करते हैं. तो पेल्विक फ्लोर मसल वो हैमॉक शेप्ड ग्रुप ऑफ मसल होता है. पूरा उसका शेप ऐसा होता है जो पकड़ के रखता है पेल्विक ऑर्गन्स को. ठीक है. तो वो उसके 3 लेयर होते हैं, सुपरफिशियल, मिडल और डीप लेयर होते हैं. ठीक है. अभी अब हम आगे देखते हैं सुपरफिशियल लेयर. तो उसके सामने मैंने पिक्चर भी रखा है उसके शॉर्ट फॉर्म में, सो यू हैव अ लुक. अच्छे से आप देख सकते हो कि सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरोनियल मसल STP, उसके बैंड आप देख सकते हो. वो PB जो लिखा है दैट इज पेरोनियल बॉडी. ठीक है. फिर बल्बो कैवर्नस है BC, इस्चियो कैवर्नस है दैट इज IC. ठीक है. और एनाल स्फिंक्टर है, वजाइना है, यूरेथ्रा है, ओके, क्लिटोरिस है. ठीक है. और ग्लूटियस मैक्सिमस है. नेक्स्ट द मिडल लेयर. मैं इसमें बहुत डीप नहीं जा रही हूँ, ओरिजिन इंसर्शन इस पे नहीं जा रही हूँ. ठीक है. मिडल लेयर दैट इज यूरोजेनाइटल. अभी उसमें डीप यूरोजेनाइटल डायफ्राम दैट इज डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. ठीक है. उसमें आपको डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर एंड कंप्रेसर यूरेथ्रा, जो वुमेन में कॉमनली देखने को मिलता है. ठीक है. अभी डीप लेयर के अंदर एक मेजर रोल है एक मसल का, दैट इज लीवेटर एनाई मसल. ठीक है. वो एमलॉक शेप्ड होता है. उसका टोन एक्चुअली हमारे दूसरे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसकी कंपैरिजन में उसका टोन काफी हाई होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ हायर रेस्टिंग टोन उसका इसके लिए होता है क्योंकि 70% स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं और 30% फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं. उसका जो हायर रेस्टिंग टोन है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी और सपोर्ट, जो उसका मेन फंक्शन है. ठीक है. और कंटेनेंस में भी वो काफी हेल्प करता है क्योंकि वो ट्रैम्पोलिन के जैसे वर्क करता है. देन अभी लिवेटर एनाई मसल्स के हम पार्ट देखते हैं. तो 3 उसमें वो डिवाइडेड है, जैसे प्यूबोकॉक्सिजियल, इलियोकॉक्सिजियल एंड कॉक्सिजियस मसल. वो आप देख सकते हो बाजू में साइड पे डायग्राम में. देन प्यूबोविसरल, उसके अंदर प्यूबोकॉक्सिजियस के 3 उसके बैंड्स होते हैं. दैट इज प्यूबोविसरल, वो लूप करता है यूरेथ्रा के आसपास, वो पूरा लूप बनाता है. देन अगेन गोज फॉरवर्ड. फिर प्यूबो वजाइनालिस जो होता है वो लूप करता है वजाइना के आसपास. जो प्यूबो रेक्टालिस है, बोथ मेल इन फीमेल दोनों के अंदर वो एनर रीजन के आसपास पूरी लूप बना के वो वहां से जाता है, ताकि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन उसका जो होता है वो हमें वाइडिंग और कंटेनेंस के लिए इजी रहता है. ठीक है. इलियोकॉक्सिजियस मसल मेनली सपोर्टिव वर्क होता है उसका. और कॉक्सिजियस मसल जो होता है वो हमारे SI जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये मैंने एकदम ब्रीफ में आपको समझाया ताकि आपको याद भी रह जाए और कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज उसके फंक्शंस.
अभी उसके फंक्शंस आप देखने को जाओगे तो पैल्विक ऑर्गन को वो सपोर्ट करता है, ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल में हेल्प करता है, ठीक है, यूरिन पास करने में, स्टूल पास करने में वो हेल्प करता है। सेक्सुअल फंक्शंस भी उसके इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रीदिंग में भी उसके उतना ही अच्छा रोल है, वो आगे जाके मैं आपको समझाती हूँ हाउ। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ में भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फीमेल इज हैविंग वजाइना, वहां से वो डिलीवर करती है बेबीज, ठीक है। उसको अगर मैं डिवाइड, अगर मेरी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो उसका 4 मेन फंक्शन, जैसे स्टेबिलिटी में आप अगर देखने जाओ तो वो ऐसा ही जॉइंट, प्यूबिक जॉइंट दोनों को वो स्टेबल रखने की कोशिश करता है आगे पीछे से बांध कर उसको, ठीक है। फिर वो देन ही प्रोवाइड सपोर्ट टू अवर एब्डोमिनल मसल, इवन जब वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन में वो कफिंग और स्नीजिंग में कंट्रोल करता है कि यूरिन ड्रॉप ना हो जाए, ठीक है। दैट इज इट्स स्टेबिलिटी फंक्शन। नाउ सपोर्ट में ऐसा होता है कि वो पेल्विक ऑर्गन को सपोर्ट करता है कि वो ऑर्गन से नीचे पीप आउट ना हो जाए, दैट इज पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स। वो कंडीशन ना है उसके लिए ये मसल स्ट्रांग होना इज इम्पॉर्टेंट। देन स्फिंक्टरिक फंक्शन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लैडर बॉवल कंट्रोल उसमें आ जाता है। देन सेक्सुअल फंक्शन में ऐसा होता है कि बल्बो कैवर्नस और इश्चियो कैवर्नस जो स्पेसिफिक मसल दो हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन पंप करके बढ़ाते हैं और वो इरेक्टाइल फंक्शन में काम आते हैं, जो क्लिटोरिस को इरेक्ट करते हैं और आपको सेक्सुअली मतलब प्रोवोक करते हैं, आपको ऑर्गेज्म फील होता है उसकी वजह से, तो दैट इज इट्स सेक्सुअल फंक्शन। तो हुआ इसका स्टेबिलिटी फंक्शन, सपोर्टिव फंक्शन, स्फिंक्टरिंग फंक्शन एंड सेक्सुअल, ये 4 मेन उसके फंक्शंस में इसको मैं डिवाइड करती हूँ। देन अगर आप देखने जाओ कि पेल्विक फ्लोर को कौन कौन सी चीज है, मतलब व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर पेल्विक फ्लोर मसल, तो वो बहुत सारे हैं। बट मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता रही हूँ। जैसे प्रेगनेंसी हुई, मतलब कितनी प्रेगनेंसी रह चुकी है वो हम हिस्ट्री में लेते हैं। जितनी प्रेगनेंसी होती है उतना उतना उसका रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते जाते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक बच्चा हम कैरी करते हैं तो 15 to 20 kg वेट होता है हमारे पेल्विक फ्लोर मसल के ऊपर, जिसको हम 9 मंथ तक बेयर करते हैं, ठीक है। लेबर ऐसी चीज है, जैसे आप समझ लो कि लेबर के कई सारे टाइप्स होते हैं। सी सेक्शन होता है, किसी का वजाइनल मतलब डिलीवरी होती है, किसी का उसमें एपिसियोटोमी किया जाता है, फोर्सेप्स डिलीवरीज होती है, तो दैट अफेक्ट्स योर पेल्विक फ्लोर मसल, ये कैसे उसकी डिलीवरी हुई है। चाइल्ड बर्थ, अभी चाइल्ड बर्थ में ऐसा है कि आप कितने बेबीज मतलब कितनी डिलीवरीज हो चुकी है उनकी, जैसे नंबर ऑफ बेबीज हम वो हिस्ट्री में एक्चुअली लेते हैं कि एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, और किस टाइप का मोड है उसका डिलीवरी का, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके फ्लोर मसल्स पे कितना स्ट्रेस आया होगा ड्यूरिंग वन डिलीवरी, और ऐसे ही आपने कितनी डिलीवरीज की है। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री, और ये एक रिस्क फैक्टर भी है कि ज्यादा मतलब आपकी प्रेगनेंसीज रह चुकी है, चाइल्ड बर्थ ज्यादा हो चुके हैं, तो नाउ यू नीड टू स्टॉप हियर। मेनोपॉज ऐसी चीज है जहाँ पे फीमेल के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उसकी वजह से उसके मूड को भी इफेक्ट होती है, उसकी बॉडी को भी इफेक्ट होती है, एट द सेम टाइम उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी इफेक्ट होती है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे मसल टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े डाउन हो जाते हैं, जैसे बोल लो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो वो जब डाउन हो जाते हैं और मूड अपना डाउन हो जाता है, सब कुछ डाउन होता है, पेल्विक फ्लोर मसल भी काफी डाउन होते हैं, क्योंकि उसकी हिस्ट्रीज भी इतनी हुई होती है कि मैरिज, हर सेक्सुअल लाइफ, और उसके बाद कितनी डिलीवरीज, कितने बेबीज, उसके बाद मेनोपॉज आता है। तो मेनोपॉज के टाइम पे उनको ट्रीट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो काफी सारे पेशेंट्स डिप्रेशन से जाते होते हैं, तो हमें फिजिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा हमें काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालना पड़ता है, उनके साथ अच्छे से बात करनी पड़ती है, देन दे आर अलाउइंग अस टू डू समथिंग लाइक ट्रांस वजाइनल और ट्रांसरेक्टल ट्रीटमेंट। इससे पहले तो हमें टच करने के लिए भी वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मेंटालिटी यहाँ पे ऐसी है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज अ फिजियोथेरापिस्ट, ट्रांसवजाइनल में क्या कर लूंगी, मतलब गायनेक में मेरा क्या रोल हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ।
सो ये दिखाने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, ये समझाने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। काफी सारे टैबूज हैं, काफी सारे मतलब उनके दिमाग में मान्यताएं हैं कि इससे कुछ नहीं होता, ये हमें मतलब बर्दाश्त करना ही है। इस there is not going to happen something over here in physical therapy, like biceps बना सकते हो, pelvic floor muscle नहीं बना सकते हो, वैसे वाली मेंटालिटी होती है जिसको चेंज करने में काफी टाइम जाता है। यू नीड मोर काउंसलिंग। फिर पुअर पोस्चर, ये हमारे फिजियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पोस्चर हमेशा देखते रहते हैं, किसी का गेट देखते हैं, किसी का ये देखते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट थी तब मेरा यही काम था कि जैसे कोई चल के आ रहा है तो उसको नॉक नीज है, बो नीज है, या फिर उसका मतलब लॉर्डोसिस ज्यादा है, काइफोसिस कम है, ये मेरा देखना बहुत ज्यादा रहता था, ये ऑब्जर्वेशन। बट वी आर नॉट पुश फॉर pelvic फ्लोर मसल कि ये सारी चीजें उस पर भी इफेक्ट डालती हैं। जैसे अगर आप स्लाउच करके खड़े हो, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करके खड़े हो, तो वो उसकी असर पेल्विक फ्लोर पे भी होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, मैं बोल रही हूँ थोड़ा आगे। फिर अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करके कोई बंदा खड़ा है कंटिन्यूअसली, तो उसकी भी असर पेल्विक फ्लोर पे होती है, एज वेल एज आपकी ब्रीदिंग पे भी होती है, डायफ्राम पे भी होती है। सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन योर ऑब्जर्वेशन। तो वो हम इग्नोर करते हैं, यूजुअली हर कोई इग्नोर करता है, मैं भी करती थी, क्योंकि इतनी अवेयरनेस तब थी नहीं। जैसे 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 हम एक्सपीरियंस करते गए, पेशेंट को ट्रीट करते गए, नहीं इसके साथ ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, वैसे हमें भी समझ में आता गया कि नहीं हमें इसको भी चेक करना चाहिए, ये छूटना नहीं चाहिए, लाइक। एंड वी आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग स्लोली। अभी वेट गेन, नेक्स्ट इज वेट गेन। वेट गेन की बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं फीमेल्स के अंदर, जिसकी वजह से उनको वेट गेन होता है, मेनोपॉज इज द वन। उसके बाद पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है, पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर भी वेट गेन बहुत कॉमन होता है। वो एक विशियस साइकिल है, जिसको पीसीओएस है उसका वेट गेन भी होता है, जिसका वेट गेन हुआ है उसको पीसीओएस होता है। तो वो साइकिल ब्रेक करने के लिए भी फिजियोथेरापिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि उसको प्रॉपर वे में एक्सरसाइज उसकी पूरा स्केड्यूल करके आए, और उसको उसका वेट ट्रेनिंग मतलब वेट रिड्यूस करने की गाइडलाइन दें। क्योंकि पीसीओएस इज द कंडीशन जहाँ पे अगर आप चाहो कि मैं 1 मंथ के अंदर इतना वेट लूज कर लूंगी, वो नॉर्मल इंसान के लिए इजी होता है, लेकिन पीसीओएस में नहीं। पीसीओएस अभी मतलब इतने सारे डिटेक्ट होते हैं, लाइक 80% फीमेल आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। जब वो लोग ट्राई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पीसीओएस एक्चुअली क्या है क्या नहीं। और कि पहले पीसीओएस की भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब स्लोली ये अवेयरनेस स्टार्ट हुई, हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए, काफ़ी सारे इस पे लेक्चर्स किए। उसके बाद कुछ लड़कियां आई, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर है, ये है वो है, उसके बाद डिटेक्ट हुआ कि उनको पीसीओएस है। हमारे टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो पीसीओएस को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर सही टाइम पे उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता तो चांसेस ये रहते हैं कि उनको आईवीएफ से गुजरना पड़ता है। ठीक है। अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अभी सबकी लाइफ एकदम सेडेंटरी हो चुकी है। जैसे मुझे यहाँ से वहाँ भी जाना है तो लाइक आई एम यूजिंग माई व्हीकल या कुछ भी ऐसे मैं करके ही जाऊंगी। आई एम सिटिंग ऑल द डे एंड डूइंग ऑल द थिंग्स, नॉट लाइक फिजिकल वर्क काफी कम हो चुका है। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी हमारे पेल्विक फ्लोर मसल को काफी इफेक्ट करती है। जैसे अगर आप स्लाउच करके पूरा दिन बैठे हुए हो तो आपके मसल भी मतलब लेजी हो जाते हैं, उसका टोन धीरे धीरे जाने लगता है। जैसे आपके एब्डोमेन का जाता है, वैसे ही पेल्विक फ्लोर का भी टोन जाता है। तो यू शुड चेंज योर पोजीशन फ्रिक्वेंटली। आप ऐसे भी गाइडलाइन दे सकते हो। जैसे अगर हाउस वाइफ है, कंटिन्यूसली शी स्टैंडिंग इन किचन और काम कर रही है, तो उसको बोलो कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज करते रहें। जो चीज हम बैक पेन के लिए देते हैं ना, वैसे ही हमें पेल्विक फ्लोर को भी ध्यान में रखना चाहिए। इफ द पर्सन इज हैविंग लाइक वाइट कॉलर जॉब, जो सिर्फ बैठ के ही उनको काम करना है, तो उनको भी कंटिन्यूसली उनकी पोजीशन चेंज करने का हम एडवाइस दे सकते हैं कि लाइक यू आर सिटिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स, नाउ यू कैन हैव अ राउंड, और फिर वापस आके बैठ जाओ, देन अगेन आप काम कर सकते हो। या तो फिर उनको हम पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन सिखाते हैं कि बैठे बैठे आप वो कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, क्योंकि पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट विजिबल, वो किसी को दिखने वाला है नहीं, तो दे कैन डू दिस एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर वर्क इवन। उनको हम ऐसे भी गाइडलाइंस देते हैं। डायबिटीज,
डायबिटीज इज द वन ऑफ द कॉज कि जो pelvic floor मसल की वीकनेस लाता है. एज डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है उनको, और काफी मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के वजह से ऐसा देखा जाता है कि वो मसल्स जो होते हैं वो काफी थिक बैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. उनकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाते. ये डायबिटीज का ऑब्जर्वेशन कॉमनली रह चुका है. लेकिन अभी तक मतलब एक्सपीरियंस नहीं मतलब किया है किसी ने, मतलब ऑन पेपर कुछ नहीं आया है. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय केसेस कि जिसको डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको इचिंग भी काफी होता है, उनको यूरिन इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली हो जाता है, और एट द सेम टाइम उनको सेक्सुअल जो फीलिंग होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो भी काफी कम हो जाता है. उनके मसल का टोन जो होता है वो काफी मतलब हाई रहता है. दे आर नॉट एबल टू गेट रिलैक्स. ठीक है. यूज ऑफ टोबैको एंड अदर थिंग्स, वो भी उसकी भी काफी सारी मतलब इफेक्ट्स होती है pelvic floor मसल पे. डिसयूज एट्रोफी तो यू नो वेरी वेल. फिर सेक्सुअल ओवर एक्टिविटी. अभी लाइक हम काफी सारे मतलब नेटफ्लिक्स पर इस पे या उस पे हम काफी सारी वेब सीरीज देख रहे हैं, उसमें विदाउट मतलब फिजिकल रिलेशनशिप उनमें कुछ दिखाया नहीं जाता. काफी सारी फैंटेसीज दी जा रही है यंगस्टर्स को, और दे आर फुलफिलिंग देयर फैंटेसीज लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल ओवर एक्टिविटीज. ऐसा नहीं है, कपल में भी काफी सारी इफेक्ट्स आती है. और जब हम लोग यहाँ पे एनकाउंटर करते हैं किसी फीमेल को, तो उन लोगों की काफी सारी कंप्लेंट्स भी होती है, लाइक माय हस्बैंड नीड दिस, दैट, इवन आई नीड दिस. वो सारी फैंटेसीज उनको रियल लाइफ में उतार रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो वजाइना होता है उसकी लैक्सिटी हो जाती है, हाइपोटोनिक हो जाता है. Like some positions are not good for your sexual relationship because वो आपके वजाइना की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज योर पार्टनर के पेनिस के लेंथ पे भी डिपेंड करता है, जो हम कभी मैच नहीं करते हैं. हम कुंडलीज मिलाते हैं पहले. पेल्विक ट्रॉमा. अभी पेल्विक ट्रॉमा मतलब किसी को एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ है, किसी को जर्क आया है, किसी को डिस्कोजेनिक पैथोलॉजी है, किसी को नर्व इश्यूज है, दैट इज पेल्विक ट्रॉमा. उसके सराउंडिंग टिश्यूज में कोई इश्यूज है, या फिर आपके फीमर में कोई इश्यूज है, तो उसकी भी काफी सारी इफेक्ट रहती है आपके पेल्विक फ्लोर मसल पे. पेरिनियल ट्रॉमा. अभी पेरिनियल ट्रॉमा कुड भी वो ऐसे भी हो सकता है कि अभी तो लड़कियां मतलब कराटे कर रही है, जिम्नास्टिक कर रही है, जूडो कर रही है, उस तब भी हो सकता है किसी की किक लगने से, या फिर सेक्सुअली अब्यूज हो चुका है तो उसकी वजह से भी पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, या फिर दूसरे भी कई सारे रीजंस होते हैं जिससे होता है. तो उसके लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं. बर्न्स विल बी द वन फैक्टर फॉर दैट. ठीक है. अभी उसके जो पेल्विक फ्लोर मसल डिसफंक्शंस है उसके टाइप्स हम देखते हैं. एक है हाइपरटोनस डिसफंक्शन. वो उसका एक एग्जांपल है सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में देखने को मिलता है. हाइपरटोनस डिसफंक्शन जो होता है उसमें टोन हाई हो जाता है. ये दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जब इस कंडीशन में कैसा होता है ना, जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 8 या 9 से टिल 14 तक आ जाती है प्यूबर्टी के सारे साइन जो चेंजेस आते हैं वो उसकी जगह पे वो अर्ली एज में देखने को मिलता है. लाइक ऑन फिफ्थ ईयर, 5 साल 6 साल में आपको देखने को मिलता है कि वो प्यूबर्टीज उसकी दिखने लगी है, आने लगी है. तो वो सारे जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ड्रास्टिक, बहुत सडन और बहुत फास्ट होते हैं. तो उसकी साइड इफेक्ट्स ये होती है, उनका ग्रोथ जल्दी हैम्पर्ड हो जाता है. उनके जो मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो जल्दी डेवलप होने के चक्कर में उनका टोन काफी हाई रहता है. और उस जब उनका टोन काफी हाई रहता है क्योंकि अभी उसके हार्मोन्स दोनों के बीच में झूल रहे हैं. प्यूबर्टी के जो हार्मोन्स है वो हाई हाई हो रहे हैं, उसके साथ साथ उसके जो चाइल्ड हार्मोन है वो भी उसके उतने ही हाई हो रहे हैं. तो देयर आर क्लैशेस, और उस चक्कर में पेल्विक फ्लोर मसल्स काफी उसके टाइट होते हैं. और एक बच्चे को ये समझाना इज क्वाइट मोर डिफिकल्ट कि उनको रिलैक्स कैसे होना है. तो उसके लिए तब मेडिकेशंस होती है जो उनकी प्यूबर्टी और उनके उसको ग्रोथ उस टाइम पे टेम्पररी स्टॉप करता है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट्स भी इतनी ही होती हैं. इनके इस सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के केसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं देखे हैं. आई हैव सीन 2 और 3 केसेस, और उस पे उनको सिर्फ रिलैक्स किया जाता है. बॉल बाउंसिंग करवा के भी हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं बच्चों को, या फिर खेल के या ध्यान डाइवर्ट करके, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू डू ट्रांसवेजाइनल और ट्रांसरेक्टल एग्जामिनेशन फॉर किड्स.
फिर સેકન્ડ second one is તો કરવાની માસી વધારે નહીં કરવાની બધી પંચાયત મને મારું દિમાગ નહીં ખરાબ કરવાનું hypotonus આની હવે હું dysfunction. સમજુ अभी हाइपोटोनस डिसफंक्शन का एक एग्जांपल है इनकंटिनेंस, या दूसरा ले लो आप पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ठीक है। हाइपोटोनस मतलब जिसका लो टोन होना। अभी लो टोन होना इज नॉट लाइक के ऐसी कंडीशन है तो आपको लो टोन है, वो किसी को भी हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट चेकिंग लाइक बाइसेप्स स्ट्रांग है कि नहीं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3। वैसे पेल्विक फ्लोर मसल हम जज नहीं कर पाते, कभी कभी हमें पता है, खुद को भी पता नहीं होता कि मेरे मसल्स स्ट्रांग है या नहीं, या हाइपोटोनस है या हाइपरटोनस है, ठीक है। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस इज द थिंग कि जब आपको पता चल जाता है कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माय यूरिन, या तो फिर मैं स्नीजिंग या कफिंग कर रही हूँ तो मुझे 1-2 ड्रॉप पास हो रहे हैं, तो दैट मीन्स योर मसल्स आर क्वाइट हाइपोटोन। फिर भी हम लोग कंफर्म नहीं बोलते, उसके बाद हम लोग उनको ले जाते हैं क्लिनिक पे, देन विल assess them, then we'll check them ट्रांसवजाइनली, ताकि हमें एक्चुअल में पता चले ग्रेडिंग सिस्टम के मसल एक्चुअली वीक है या शी इज स्ट्रेस्ड, दैट्स व्हाई ये होता है, क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से भी इनकंटिनेंस देखने को मिलता है, एज वेल एज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होती हैं, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शंस, इन कोऑर्डिनेशन मतलब जो मैंने अभी बताया था, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल एंड एनोरेक्टल ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है प्रॉपर्ली। इफ यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर यूरिन और समटाइम्स, लेकिन एट द सेम टाइम आपके ऊपर के मसल आपके वीक है, वो होल्ड नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम आपके जो एनोरेक्टल मसल्स है वो काफी टाइट है, आपको फीसिस पास नहीं हो रही। ये सारे केसेस मैंने अभी बहुत देखे हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग विद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और वहाँ पे ये केसेस बहुत बार एनकाउंटर हुए हैं। तो ये ट्रीट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, और उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, जैसे हाइपोटोन है वैसे ट्रीट करते हैं, एक को रिलैक्स करना है एक को करना है, तो उसका उल्टा उनको सिखाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो पहले जो उनकी प्रायोरिटी होती है ना, हम उस पर फोकस करते हैं, देन विल गो इवेंचुअली कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। See, our profession is like a trial and error. We can't say that I am only the person और मैं जो बोल रही हूँ वही correct है. We are experimenting the things, और इस पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, then we'll decide कि हाँ this will work. Books भी ऐसे ही बनी है सारे experiments करके, और सारी theories भी ऐसे ही बनी है experiments करके. And pelvic floor muscle is like for me कि मैं खुद ही experiment कर भी रही हूँ, और काफी सारे results आ भी रहे हैं, और काफी सारा reading भी चल रहा है। अभी ये हुआ इन कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन। विसरल डिसफंक्शन, विसरल डिसफंक्शन में कैसा होता है, एंडोमेट्रोसिस इज द कंडीशन, फिर इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम इज द कंडीशन, जहाँ पे बाहर कुछ इन्फेक्शंस भी हो चुका होता है, काफी कुछ फेशिया और ये सब चिपक जाता है, और वहाँ पे सारे मसल्स भी आपके टाइट हो जाते हैं, तो उसको हम हाइपोटोन लो टोन के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने की ट्राई करते हैं। तो ये 4 हुए उसके मेजर डिसफंक्शन। अभी भी इन सर्च है, दूसरे सारे भी मतलब क्लासिफिकेशंस है, पर मैंने अभी यही उठाया है बेसिक सिर्फ क्लियर करने के लिए, कि जैसे हाइपरटोनस, हाइपोटोनस, इनकोऑर्डिनेशन एंड विसरल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। द सेकंड बिग क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया कि हम लोग असेसमेंट लेते हैं तो वी आर फॉलोइंग सम फॉर्मेट, वो फॉर्मेट हमारी गाइडलाइन के लिए होता है, ऐसा मेरा मानना है कि हाँ मैं ये फॉर्मेट फॉलो कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम ईच पेशेंट इज योर टीचर। हर कोई एक सा नहीं होता, यू हैव टू मॉडिफाई दैट, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट समथिंग, यू हैव टू डिस्कार्ड समथिंग। तो वो आप पे होता है, आपके एक्सपीरियंस पे होता है, एक्सपेरिमेंट्स पे होता है, स्किल्स पे होता है। जितने ज्यादा पेशेंट्स देखना स्टार्ट करोगे उतनी क्वेरीज आएगी, उतने क्वेश्चन होंगे, उसका इतना सॉल्यूशन आप ढूंढोगे, और उतने नए नए आपके असेसमेंट फॉर्मेट बनते जाएंगे। इवन आई वॉज हंटिंग eager to hunting or searching for the pelvic floor assessment format, मुझे गायने का ये चाहिए वो चाहिए when I was student, और इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड मैंने असेसमेंट फॉर्मेट देखे हैं ना, आई वाज लाइक यार इतना असेसमेंट लूंगी तो पेशेंट ही भाग जाएगा क्योंकि इतने टाइम होता नहीं है। ऑलरेडी दे आर वेटिंग अ लॉट फॉर गायनेक, जो डॉक्टर होता है उसके लिए वो लोग काफी वेट करते हैं, फिर फिजियोथेरापिस्ट के पास आते आते उनकी वो बांध टूट जाती है। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय क्लिनिकल स्टफ, वो मैं सिर्फ शेयर